امام اہل سنت حامی سنت جبل الاستقامت ورا و تقوی کے شکار حضور سیدی سندی کنزی آقائی و مولائی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بارگاہ مصطفیٰ میں پکار کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لبے عیسیٰ سے جا بخشے نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں مختار کائنات ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وارف تقی حشر میں کیا کیا مزے میں لو رضا لوٹ آؤ پاکے میں دامان عالی ہاتھ میں اور امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت آگے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پکار کر مچل کر وہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا لکھو شان آپ کی کیا کہے اس کی بیان یعنی سرور کہو کہ مالک کو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے تیرے ترس فائدے تناہی سے ہے بھری حیرہ ہونے شاہا کیا کیا کہو تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے جانے جا جانے تجلہ کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے مرشد برحق جلوہ قدرت سیدی سندی کنزی آقائی و مولائی سرکار تاج الشریعہ علی رحمت الرحمن بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں بتا کر دے جہاں بالی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسما کر دے سریا کو سرا کر دے اور ہمیں کیا فکر ہو اختر و یاور ہے میرے یاور ہمیں کیا فکر ہو اختر و یاور ہے میرے یاور بلاؤ کو وہ خود میرے گرفتارے بنا کر دے حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نعتوں منقر تھے اور تقاریر سن رہے تھے مجھ ناچیز کو 10 بجے کا وقت دے کر 11:30 بجے کرسی خطابت پر بٹھایا یہ میرا اپنا مقدر ہے ساگر دیناج پوری صاحب اپنے ساگر کی تمام تک جولانیت آپ کے سامنے بکھر رہی تھی رب تعالیٰ ان کی آواز میں مزید شگفتگی اور نغمگی عطا فرمائے عدم سے لائی ہے ہستی نے آرزوئے رسول عدم سے لائی ہے ہستی نے آرزوئے رسول کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول چمن زہرا کا ہر شگفتہ گلے تر ہے کسی میں رنگ علی کسی میں بے رسول عجب تماشا ہو میدان حشر کا بیدم سب ہو پیش خدا اور مرید رسول یہ شہید اعظم کانفرنس الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مقدر کی بات ہے میرے تقدیر کی بات ہے کہ سرزمین آباری میں یہ دوسری بار مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے قابل مبارکباد ہے ہمارے کمیٹی والے اور جتنے بھی اراکین ہیں گاؤں والے جنہوں نے اس جلسے کو بچانے میں رسانے میں اس جلسے کو کامیاب کرانے میں جو جانور ذبح کر کے دعوتوں کو لوگوں کے درمیان میں دعوتیں کرنے والے لوگوں کو کھلانے میں پلانے میں اور لوگوں کی مہمان نوازی میں بستر وغیرہ کا انتظام کر کے ان کو آرام کرنے کا انتظام کرنے میں جنہوں نے تعاون کیا ہے رب تعالیٰ سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے حضرات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ ہر جگہ ہوتا ہے ایک رسم بنا لیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں شہید اعظم کانفرنس ہے ہم نے کانفرنس کو ایک مہمانداری مہمان نوازی کا نقشہ دے دیا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین 3 دن کربلا میں کھانا نہیں کھائے 3 دن تک آپ نے پانی نہیں پیا بھوکا پیاسا رہے ہیں بچوں کو اسلام کی راہ میں آپ نے قربان کیا آپ خود رب کی راہ میں شہید ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آج ہم سب سے پہلے مہمان کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے جلسہ سنے نہ سنے کوئی بات نہیں جلسہ کامیاب ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہماری کامیابی تو ہو چکی ہے کہ ہمارے گھر کا گوشت مہمان کھا چکا ہے ہم نے جو کھانے کا انتظام کیا کم نہیں پڑا مکمل ہو گیا ہے ہمارے مہمان کھائے آرام کیے صبح ناشتہ کیے چلے گئے کل میدان محشر میں ہم امام حسین کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ مولا حسین آمباری کی سرزمین پر شہید اعظم کانفرنس آپ کے نام سے رکھے تھے 2-3 جانور ہم نے ذبح کیا ہے گھر میں کوفتہ کباب کھانا پلاؤ بہترین مہمان نوازی سرکار ہم نے کی ہے اور سرکار نے فرمایا آپ کے نانا جان کی حدیث ہے من احب حسین فیحبہ ومن یحبہ فیحب اللہ جو حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے کیا اور جس نے مجھ سے محبت کی مولا اور رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کی ہے ہم نے آپ سے محبت کی ہے حضور نے کھانا کھلایا ہے اب اس کا صلہ کیا ہے جنت ہے تو یہاں سے لے کر پیچھے تک جتنے لوگ دنیا عورتیں بیٹھی ہیں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا امام حسین سے یہی محبت کا
तकाजा है कि हुसैनी मेवार को कोई समझ नहीं सका है और खाने पीने में इतना उलझ गए हैं कि हम सोचते हैं हमारा जलसा खाने पीने ही से मुकम्मल होता है। हजरात याद रखिएगा, इस्लाम, आपका ये इस्लाम इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंचा है, आपका कुरान इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंचा है, आपकी नमाज इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंची है, आपका हज इतना आसान से आप तक नहीं पहुंचा है, आपकी ज़कात की अहकामियत इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंची है। हजारों गर्दनें इस्लाम में कुर्बान रही तब आप तक कुरान पहुंचा है, हजारों लोगों के खून बहाए गए तब नमाज आप तक पहुंची है, हजारों लोगों की गर्दनें इस्लाम की राह में कटी है तब हज आप तक पहुंचा है, हजारों लोग अपने बलिदान दिए हैं तब ज़कात की फर्जियत और अहकामियत आपके सामने पहुंची है। उलमा किराम गवाह है, आप अच्छी तरह से जानते हैं 1400 साल की तारीख आई है, इस तारीखों में न जाने कितने जालिम और जाबिर पैदा हुए हैं। आप से पहले की तारीखों को उठाकर देखिए, कोई नमरूद के जमाने में उभरा है, कोई शद्दाद बन के जमाने में उभरा है, कोई कारून बन के जमाने में उभरा है, कोई फिरौन बन के जमाने में उभरा है। हर एक चाहता था इस्लाम को मिटाना, हर एक चाहता था इस्लाम को खराब करना, हर एक चाहता था दीन खुदा को बर्बाद करना। मगर कसम खुदा की जिस दीन का आलम ये था कि जब नमरूद आया सामने तो रब ताला ने हजरत इब्राहिम को पैदा किया, जब फिरौन आया तो रब ताला ने हजरत मूसा को पैदा किया, जब हामान आया तो रब तबारक व तआला ने हजरत तालिब को पैदा किया। इसी तरीके से करबला के तपते हुए शहरों में इसी तरह कई हजार साल के बाद एक सर उठाने की कोशिश किया जिसको यजीद कहते हैं, एक सर उठाने की कोशिश किया जिसको यजीदियत कहते हैं। कहा इस्लाम को मिटा देगा, कुरान को मिटा देगा, निज़ाम मुस्तफा को मिटा देगा, शरीयत मुस्तफा को मिटा देगा। तो ललक कर तड़प कर हाथ उठाकर खंजर लेकर तलवार लेकर तीर तलवार लेकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर भांजों को लेकर भतीजों को लेकर अपने भाइयों को लेकर मैदान करबला में पहुंचे हैं और तड़प कर यही कहते चले आए हैं कि गश्ते बला को अर्श का ज़ीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्राए नजफ को नगीना बना दिया, हुसैन मरने को ज़ीना बना दिया। यही करबला का पैगाम है, नाजदारी करबला का पैगाम नहीं है, इशहाद खुदा करबला का पैगाम नहीं है। पूछो हजरत के अंदर में अली असगर की सुर्खी हुई जबान से कि करबला में आपने जबान निकाले क्या किसी जालिम ने पानी दिया है? आज अली असगर के नाम पे शरबत पिलाया जा रहा है। हजरत अली अकबर की गर्दन आदि कट चुकी थी, आवाज बची हुई कि पुकार करके या अल्लाह पे आकाशनी, हे मेरे अब्बा हुजूर मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मौला हुसैन हाथ खड़े करके फरमाते बेटा ला तशरीबुल मआद की दुनिया व यशरब अला हौज़िल कौसर, ऐ बेटा दुनिया के पानी पीने की अब तुझे जरूरत नहीं है। हौज़े कौसर पर नाना मुस्तफा तेरा इंतजार कर रहे हैं, हौज़े कौसर पर तेरा पानी इंतजार कर रहा है। बेटा जन्नत का पानी तेरा मुकद्दर हो चुका है, अब बेटा तेरी गर्दन लेकर तुझे इस्लाम बचाना है, खून जमीन पे डालकर तुझे इस्लाम बचाना है। ऐ आमदारी के जियाने में जमाने आप काबिल मुबारक बाद होकर शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज देना चाहते हो, एक मैसेज करना चाहते हो, एक पैगाम देना चाहते हो। जब तुम्हारे इस्लाम के बच्चों की जरूरत है तो बच्चों को आगे करना, जब जवानों की जरूरत है तो जवानों को आगे करना, जब बूढ़ों की जरूरत इस्लाम को हो तो बूढ़ों को आगे करना, जब खाने की जरूरत है तो खाना गरीबों में बांटना, जब पानी की जरूरत है तो पानी आगे बांटना। मगर शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में मेहमान नवाजी करके ये मत बताना कि हमारी के लोग बड़े मेहमान नवाजी है, बल्कि ये बता देना जितने हैं सब हुसैन के गुलाम हैं, जितने हैं सब हुसैन के चाहने वाले हैं, जितने हैं सब हुसैन के मानने वाले हैं। इसीलिए कि हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। हर जगह हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हर गली में हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हर शहर में हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हर नगर में हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हर कलिये में हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हर बस्ती में हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हर मोहल्ले में हुसैन का नाम लिया जा रहा है। हुसैन ने किया क्या है? हत्या नफूस से कुछ से मेरे करबला के मैदान में गए हैं, चाहते इमाम हुसैन के सरेंडर हो सकते थे, आपके हाथ दे सकते थे, मगर ये नसीबियों को पैगाम दे गया कि तुम 72 को मरते थे, आज 72 यहाँ शहीद होंगे और 72 करोड़ हुसैन का नाम लेने वाला पैदा होगा। वही मुस्तफा है, हुसैन से फरमाते, हुसैन से रब से कहता मौला मैं हुसैन से मोहब्बत कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा हिब्बुल हुसैन, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। वो युहिब्बु हुसैन, ए परवरदिगार तू भी हुसैन से मोहब्बत करना। वो मन अहब्बल हुसैन वो युहिब्बुहु, ए परवरदिगार यही तक बात नहीं होती है। अब आपको मैं बताना चाहता
हूँ डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ये हुसैन की मोहब्बत है जो कुर्सी लगी हुई है, ये हुसैन की मोहब्बत है जो माइक लगा हुआ है, ये हुसैन की मोहब्बत है जो लाइट लगी हुई है, ये हुसैन की मोहब्बत है जो हम बैठे हुए हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है जो अल्लाह बैठे हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है जो खतीब आए हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है जो शायर आए हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है आपने चंदा दिया है, ये हुसैन की मोहब्बत है जो शायर शायर पढ़ रहे हैं, ये हुसैन की मोहब्बत है जो किताबें पढ़ी जाती है, ये तो हुसैन की मोहब्बत है। अब हुसैन से जिसने मोहब्बत किया उसको सिला क्या मिल रहा है? क्या गोश्त मिलना यही सिला है? क्या बैठना मिलना यही सिला है? क्या उठना मिलना यही सिला है? क्या मार्केट घूमना मिलना यही सिला है? पान मिलना यही सिला नहीं। हुसैन से मोहब्बत का सिला क्या मिलता है? मेरे मुस्तफा ने कह दिया है, साफ कह दिया है, कयामत तक बता दिया है, मम्मा ताला हुक्म आले मोहम्मद माता शहीद। अब गौर से सुनना मुसलमानों, शहीद होने के लिए पानी में डूबना होता है, शहीद होने के लिए गाड़ी से गुजरना होता है, शहीद होने के लिए तलवार से पकड़ना होता है, शहीद होने के लिए मैदान में जाना पड़ता है, शहीद होने के लिए दुश्मन के मरते में जाना पड़ता है। मगर आम में बैठ के आप लोग हुसैन मैं मोहब्बत कर रहा है, अहले बैत से मोहब्बत कर रहा है, हुसैन से मोहब्बत कर रहा है, अली से मोहब्बत कर रहा है, फातिमा से मोहब्बत कर रहा है, हसन से मोहब्बत कर रहा है। अब इस मोहब्बत का सिला क्या मिल रहा है? इसकी जज़ा क्या मिल रही है? इसकी बेनिफिट क्या मिल रही है? इसका फायदा क्या मिल रहा है? कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मम्मा ताला हुक्म मोहम्मद माता शहीदा, तू अहले बैत से मोहब्बत करता जा, रब ताला तुझे शहादत का मकाम अता फरमाएगा, तुझे शहादत का मकाम अता फरमाएगा। अब यही तक बात रही है। आप जाते कब्रिस्तान फातिहा एक दिन पढ़ते हैं, आप जाते कब्रिस्तान फातिहा 1 घंटा पढ़ते हैं, एक दिन कुरान खानी करते हैं, साल में एक दिन कब्रिस्तान जाते हैं, मगर तो हुसैन से मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, अहले बैत की मोहब्बत में रहता है। तो हदीस से पाक है, मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया है, मम्मा ताला हुक्म आले मोहम्मद जहां कब्र हुसैन अली मलाइका, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा रब ताला उसके कब्र को रहमत की ज़ियारत, फरिश्तों की ज़ियारत का बना देता है। आप फातिहा पढ़े या ना पढ़े, आप हुसैन का नाम लो, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। आप हुसैन का नाम लो, फरिश्ते आपकी असमत तलब कर रहे हैं। आप हुसैन का नाम लो, फरिश्ते आपके तराने गा रहे हैं। और जिस पर हुसैन आज़म के मोहब्बत की मोहर लग जाती है, तो मेरे आका फरमाते हैं, अल कुरान मअल हुसैन, ये हुसैन मअल कुरान, अल कुरान यशफा यौमल क़यामा, पहले यदखुलु बिहिल जन्नह, हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन कुरान उसकी शफाअत करेगा, अहले बैत उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत में ले जाएगा। नारे तकबीर, सारे हज़रात बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हक साहब किबला, सरजमीन आमबाड़ी, नौजवानाने कमेटी आमबाड़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ये है अहले बैत से मोहब्बत का सिला, ये है अहले बैत से मोहब्बत की ताकत, ये है हुसैन से मोहब्बत की ताकत। ये हुसैन की मोहब्बत है तो 1 बजे रात तक जाग रहे हैं, 2 बजे रात तक जाग रहे हैं। ये हुसैन है कौन? ये हुसैन किसका नाम है? ये हुसैन की असमत क्या है? ये हुसैन का मकाम क्या है? ये हुसैन की फजीलत क्या है? ये हुसैन की शान क्या है? ये मौला हुसैन का नाम इतना बुलंद क्या है? ये हुसैन जिसका कपड़े बच्चा है, आपका कपड़ा मार्केट से आता होगा, बाजार से आता होगा, मगर मौला हुसैन से जरा पूछो, हुसैन आपने कौन सा लिबास पहना है? आप तो दुनिया में जी रहे हैं, आप तो मक्का में है, आप मदीने में है, आप करबला में है, आप हिजाज में है, आप दमिश्क में है, आप तो शाम में है, आप तो नजफ में है, आप तो कूफा में है। सरकार ये तो बताइए कि आप कौन सा लिबास पहन रहे हैं? तो मौला हुसैन की तारीफ बता करते थे। आपका बेटा अगर रोता है तो इस्लामपुर का कपड़ा आता है, किशनगंज का कपड़ा आता है, सीनीगुड़ी से कपड़ा आता है, कोठिया छतरगाछ से कपड़ा आता है, मगर हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। जो जन्नती जवानों का सरदार होगा उसका कपड़ा क्या दुनिया वाला हो सकता है, उसका लिबास क्या दुनिया का हो सकता है, उसकी खुराक क्या दुनिया की हो सकती है, उसका पानी क्या दुनिया का हो सकता है, उसकी शरबतें क्या दुनिया की हो सकती है, उसको क्या तहजीब दुनिया की मिल सकती है। आओ मौला हुसैन से पूछते हैं, मौला हुसैन कपड़ा कौन सा पहने हैं? छोटे चच्चे हजरत इमाम
इमाम हसन इमाम हुसैन है, यानी एक की उम्र 3 साल है और दूसरे की उम्र 4 साल है। ये दोनों नन्हे नन्हे मुन्ने से है, जिसे मुस्तफा अपने बाजुओं में उठाते हैं, जिसको मेरे नबी अपने कंधे पे उठाते हैं। जितने रोड पे लोग आ रहे जा रहे हैं उन सबको गौर से देखिएगा। सुबह उनसे आपको टिकट लेना पड़ेगा, सुबह उनसे आपको नजराना वसूल करना पड़ेगा। अरे मेरे भाई तकलीफ सुनने आए हैं, मुझे देखो, वो आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, चलने वाले चलते रहेंगे, मगर फैजान हुसैन आपको नहीं मिल सकता है। हुसैन की बरकतें नहीं मिल सकती हैं। जब तक हुसैन की याद में डूब न जाए तब तक हुसैन से मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता है। जब तक हुसैन का जिक्र दिल से ना निकले तब तक फैजान हुसैन से आप दूर नहीं, आप फैजान हुसैन के करीब नहीं हो सकते हैं। अब ये दोनों छोटे बच्चे हैं, सुबह ईद की नमाज होने वाली है। मक्के मदीने का हर बच्चा नया लिबास पहन चुका है, हर बच्चा नया लिबास तैयार हो चुका है, हर बच्चा मदीने के एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मेरे बाप इतना शानदार कपड़ा लाया है, मेरी माँ इतना अच्छा कपड़ा लाई है, मेरी बहन बेहतरीन कपड़ा लाई है। कोई मुल्क शाम से कपड़े की बात करता है, कोई यमन से बात करता है, कोई मिस्र से किसी का कपड़ा आया है, किसी का कपड़ा मदीने के बाजार से आया है। ये दोनों नन्हे मन्ने हुसैन है। आते हैं अपने माँ के पास, आकर कहते माँ सुबह ईद की नमाज होने वाली है, ईद की नमाज सुबह होने वाली है, मगर अब तक हमारे कपड़े क्यों नहीं आए हैं, अब तक हमारा लिबास क्यों नहीं आया है। हज़रत खातून जन्नत वो है जो भूखी रहती थी मगर शिकायत नहीं करती थी, जो प्यासी रहती थी मगर शिकायत नहीं करती थी। आज अगर एक वक्त हमारे घर में खाना ना बने तो खाना हम अपने घर को छत के ऊपर उठा लेते हैं, हम अपने आसमान को सर को उठा कर लेकर फेंकते हैं। मगर वो साबिरों का घराना है, वो शाकिरों का घराना है, वो साजिदों का घराना है, वो आबिदों का घराना है, वो मेरे को बांटने वालों का घराना है, वो जमाने को चलाने वालों का घराना है। ना फातिमा जैसी कोई बेटी हो सकती है, ना हजरत अली जैसा कोई शोहर हो सकता है, ना हसनैन करीमैन जैसा कोई बेटा हो सकता है, और ना मुस्तफा जैसा कोई समाज और ससुर होते हैं। ये मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है। इतने सब्र का पैमाना उनके अंदर नबेश कर दिए हैं कि जमाना देख कर कहता है वो किसी और का घर नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के खानदान का घर है, वो हसन और हुसैन का दरवाजा है। ये दोनों छोटे बच्चे हैं। हज़रत खातून जन्नत फातिमा की ज़हरा के पास आते हैं और आकर कहते माँ हर बच्चे का लिबास तैयार हो गया मगर हमारा अब तक लिबास क्यों नहीं बना है, हमारा कपड़ा अभी तक क्यों नहीं आया है, हमारा दर्जी कहाँ चला गया है। माँ पसंदी देती है बेटा थोड़ी देर और सब्र कर लो, तुम्हारा दर्जी कपड़ा सिलकर लाने वाला है, तुम्हारा टेलर कपड़ा सिलकर लाने वाला है। हज़रत खातून जन्नत है। अब बच्चों को पसंदी दे देती है, बच्चे बाहर चले जाते हैं। बच्चों ने पूछा, जरा पूछा बच्चों ने, बच्चे दूसरे पूछ देते हैं हसन हुसैन तुम्हारा लिबास कहाँ है, हसन हुसैन तुम्हारा कपड़ा कहाँ है, हसन हुसैन तुम्हारे जोड़े कहाँ है, हसन हुसैन ईद का जोड़ा कहाँ है, कल क्या पहन कर ईद पर हो गए। जैसे माँ ने तसल्ली दी थी, खातून जन्नत ने बताई थी हमारा बेटा तुम्हारा दर्जी कपड़ा लाने वाला है, तुम्हारा कपड़ा अभी तक आया नहीं, आने वाला है। अब हज़रत खातून जन्नत मुसल्ला बिछाती है, हम और आपकी माँ और बहन होगी तो फौरन इस्लामपुर दौड़ जाती, फौरन ठाकुरगंज दौड़ जाती, फौरन बड़े से बड़े मार्केट में चली जाती, बड़े से बड़े शोरूम में चली जाती। जितनी कीमत हो बच्चे की सब पूरी करनी है, मगर खातून जन्नत मेरे सजदों को सला, फातिमा तेरे मुसल्ले को सला, फातिमा तेरी दुआ को सला, फातिमा तेरी इबादत को सला, फातिमा तेरे सब्र को सला, फातिमा तेरे शुक्र को सला, फातिमा तेरी इज्जत को सला, फातिमा तेरी चादर कफीर को सला, फातिमा आपके नाले मुकद्दस को सला, फातिमा आपके दरे मुकद्दसा को सला। हज़रत खातून जन्नत न बाप से शिकायत करती है, न मौलाए कायनात शहर से बोलती है, न किसी मदीने के इंसान से बोलती है, मुसल्ला बिछाती है, रोने में जाकर सर को सेके में रखती है, उस अपनी बारगाह से मांगती मौला मैंने बच्चों को तसल्ली तो दे दी है मगर कल कपड़ा ना आए तो मुझे रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, मुझे बच्चों के सामने बेइज्जती खानी पड़ेगी, मुझे शिद्दत का सामना करना पड़ेगा। एक परवरदिगार खातून जन्नत की सजदे की लाज रख लेना, फातिमा ज़हरा की दुआओं की लाज रख लेना। एक परवरदिगार यही तुम बड़े होकर तेरे इस्लाम को बचाएगा, यही तुम बड़े होकर तेरे कुरान को बचाएगा, यही तुम बड़े होकर तेरे मुस्तफा की शरीयत को बचाएगा। एक परवरदिगार आज खातून जन्नत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई है, खातून तुमको है जमाने को पाप नहीं है, दूसरे से कैसे मांग सकती है। ये मौला तेरी बारगाह में सबको सजदा में रखकर मांग रही है, परवरदिगार मेरी खाली हाथों की लाज रख लेगा। इधर फातिमा की ज़हरा दुआ मांग रही है, उधर दरवाजे पर दस्तक
दस्तक देने वाला दस्तक दे रहा है। फातिमा सर को सजदे से उठाती है, घर के अंदर से पुकारती है बन तलवार, कौन आए हो ख्वाजा अब्दुल खान खुमदिया, मैं मुस्तफा जाने रहमत के खानदान का खयात यानी दर्जी आया हो। कहा क्या लेकर आए हो? कहा हसनैन का जोड़ा लेकर आया हो। हजरत खातून जन्नत पर्दे की ओर मुड़ कर दरवाजा खोलते हैं, दर्जी जोड़ा देकर जाने ही वाला था। खातून जन्नत पीछे से पुकार करके जल्दी जरा ये तो बता ये जोड़ा किसका है? कहा शहजादों का जोड़ा है। कहां से लेकर आए हो? कहा दुनिया का बच्चा अगर होता है तो दुनिया का कपड़ा पहनाया जाता है, जन्नती जमानों का सरदार है, जन्नत से जोड़ा बनाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, जिक्रे शुहदाए करबला, यादे करबला, हज़रत अल्लामा नूरुल हक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात क्या समझ पाएंगे अज़मत हुसैन को? क्या समझते हैं हम अहले बैत की अज़मत को? हम सोचते हैं जैसे हमारा बेटा वैसे हुसैन भी होते हैं, जैसे हमारी औलाद वैसे मुस्तफा की औलाद है। कसम खुदा की मेरे नबी कभी मांगे नहीं है। मुस्तफा का आनंद तुझे है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, जिसके दो पेड़ है कौसर और सलसबे, हैदर अहमद का दरिया हमारा नबी, जिक्र फीका है जब तक का मशहूर हो, उसको नमकीन वाला हमारा नबी, जिसके दो पेड़ है कौसर और सलसबे, हैदर अहमद का दरिया हमारा नबी, वरना बदली रसूलों की होगी वरना बदले न बदला हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आगा हमारा नबी, हम सबों को रशा उसका पीछे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो मेरे मुस्तफा है, कभी मांगे नहीं है, कभी हाथ नहीं फैलाए हैं, कभी इल्तिजा नहीं किए हैं, कभी दस्ते सुआल दराज नहीं किए हैं, कभी किसी के सामने दामन नहीं फैलाए हैं। मेरे नबी बैठे हैं, मस्जिद नबवी का मिंबर है, हज़रत सैयदना जिब्राइल आते हैं, आने के बाद मेरे मुस्तफा के करीब पहुंचे हैं। या रसूल अल्लाह यक़रअ सलाम अल्लाह, रब ने आपकी बारगाह में सलाम भेजा है। मेरे मुस्तफा सलाम कबूल करते हैं। ए जिब्राइल लिमा नज़लतुल वही हराउना, इस पर कौन सी वही लेकर आए हो? कहा या रसूल अल्लाह बात बहुत सख्त है, कहूं कि मत कहो। कहा बोलो जिब्राइल क्या कहना चाहते हो? कहा रब ने आपको मांगने का हुक्म दिया है, रब ने आपको तलब करने का हुक्म दिया है, रब ने मांगने का हुक्म दिया है। मेरे मुस्तफा शर्माते हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं है एक वक्त का खाना होता है, मैं गुलाम को पहले खिलाता हूँ, वो जोड़ा कपड़ा होता है गुलाम को पहले दिलाता हूँ, घर में एक साझा होता है पहले गुलाम को देता हूँ, एक मुट्ठी खजूर होता है पहले गुलाम को देता हूँ, मेरे घर में जो कुछ होता है पहले गुलामों में तकसीम करता हूँ। मगर आज तुम मांगने की बात कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह मांगना पड़ेगा, अबू बकर से मांगना होगा, उमर से मांगना होगा, उस्मान से मांगना होगा, तलहा से मांगना होगा, अबू मूसा अशअरी से मांगना होगा, मुआज़ इब्न जबल से मांगना होगा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ से मांगना होगा। या रसूल अल्लाह क़यामत तक हर एक गुलाम से आपको मांगना होगा, हर एक गुलाम से आपको मांगना होगा, हर एक गुलाम से आपको मांगना होगा। मुक़द्दर वाले सोचो, मुस्तफा हमसे मांगे हैं, मुस्तफा हमसे तलब किए हैं, क्या मांगे हैं मेरे नबी? इशारा करके तो चांद को टुकड़ा हो रहा है, इशारा कर रहे तो दूसरा सूरज पलट कर आ रहा है, इशारा कर रहे तो सदर में हजरत मुस्तफा के कदमों में है, इशारा कर रहे तो पहाड़ सोने का हो रहा है, इशारा करते हैं तो तलवार नकली तलवार बन जाती है, इशारा कर रहे तो उनकी ही आंख अच्छी हो जाती है, इशारा कर रहे तो जमीन से पानी निकल कर आता है, इशारा कर रहे तो इतनी दौड़ती हुई मुस्तफा की बारगाह में है, इशारा करते हैं तो सदर में हजरत कलमा पढ़ने लगे हैं। मगर मेरे मुस्तफा मांगे तो क्या मांगे? दौलत की जरूरत नहीं है, सरवत की जरूरत नहीं है, कुर्सी की जरूरत नहीं है, इख्तियार की जरूरत नहीं है, हुकूमत की जरूरत नहीं है। रब ने सब कुछ मुस्तफा के कब्जे इख्तियार में किया है। यही तो करेबी के इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तो तस्लीम, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां है, यही फूल खान से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है, तेरे आगे यूं है कबे नचे खुशहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मिले जबान है नहीं बल्कि जिस्म में जान है, करूं बंदे होने कौन रसा करे उस बला में मेरी बला, मैं बताऊं अपने करीब का मेरा दीन का राय मान है। हज़रात ये है मुस्तफा की बारगाह। आज नबी को मांगने का हुक्म दिया है। आप में से कौन है जो नबी को मांगते हैं? नबी 1400 साल पहले मांगे, अभी देना पड़ेगा, आज देना पड़ेगा, आमदानी के जलसे में देना होगा, शहीद आसन कॉन्फ्रेंस में देना होगा। उठाओ कुरान, अब कुरान कहता क्या देना होगा मुस्तफा को, क्या अदा करना होगा मुस्तफा को, मुस्तफा जाने रहमत को क्या
دے سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ماں کا احسان اتنا نہیں ہے، باپ کا احسان اتنا نہیں ہے، رشتے دار کا احسان اتنا نہیں ہے، پڑوسی کا احسان اتنا نہیں ہے، دنیا والوں کا احسان اتنا نہیں ہے جتنا احسان میرے مصطفیٰ کا ہم پر ہے، جتنا کرم میرے نبی کا ہم پر ہے، جتنا احسان میرے نبی کا ہم پر ہے۔ میرے نبی نے قرآن دیا، یہ نبی کا احسان ہے، اسلام دیا، یہ میرے نبی کا احسان ہے، شریعت دیا، میرے نبی کا احسان ہے، کھانے کا طریقہ بتایا، میرے نبی کا احسان ہے، پہننے کا طریقہ بتایا، میرے نبی کا احسان ہے۔ تو نبی کو اس کے بدلے میں کیا دے تھے؟ ہم نہ مال دے سکتے ہیں، نہ جان دے سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ کرسی دے سکتے ہیں، نہ اقتدار دے سکتے ہیں۔ نبی کو دینا ہے تو کیا دینا ہوگا؟ تو قرآن میں رب نے فرمایا ہے اے محبوب کہہ دو کہ میں نے اسلام دیا، اس کے بدلے میں علی سے محبت کرنا، میں نے دین دیا، اس کے بدلے میں فاطمہ سے محبت کرنا، میں نے شریعت دیا، اس کے بدلے میں حسن حسین سے محبت کرنا۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو میرا محبت نبی تم کا احسان ہو جائے گی، اور اسی محبت کا صلہ یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ دنیا میں ایمان والا بنا کے رکھے گا، جب مرو گے تو رب تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ انور الحق صاحب قبلہ کی محبت۔ اب آؤ کربلا کے تپتے ہوئے چہرے پہ چلتے ہیں۔ میں عظمت حسین پہلے بتانا چاہتا ہوں، اب آپ کو شہادت کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ بہت سارے دنیا میں شہید ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین پہلے شہید ہیں۔ تمام شہیدوں کا مقام ایک طرف ہے، حسین کی شہادت کا مقام ایک طرف ہے۔ تمام شہیدوں کی فضیلت ایک طرف ہے، حسین کی شہادت کی فضیلت ایک طرف ہے۔ تمام شہیدوں کے کمالات ایک طرف ہے، حسین کی شہادت کی کمالیت ایک طرف ہے۔ تمام شہیدوں کا مرتبہ ایک طرف ہے، حسین کی شہادت کا مرتبہ ایک طرف ہے۔ تمام شہیدوں کا احسان ایک طرف ہے، حسین کے کربلا کا احسان ایک طرف ہے۔ تمام اماموں کا احسان ایک طرف ہے، کربلا میں امام حسین کا اقامہ ایک طرف ہے۔ تمام لوگوں کے احسانات ایک طرف ہے، حسین کا احسان کربلا میں ایک طرف ہے۔ وہ مولا حسین ہے، کربلا کا تپتا ہوا سرا ہے، وہ مولا حسین ہے، کربلا کا ذرہ ذرہ ہے، وہ مولا حسین ہے، کربلا کا ریگزار ہے، وہ مولا حسین ہے، کربلا کا پتا پتا ہے۔ دو شہادتیں بیان کر رہا ہے، میرے بعد ایک تقریر آپ کو اور بھی سننی ہے۔ ایک شہادت حضرت مولا عباس کی ہے، دوسری شہادت مولا علی اصغر کی ہے، اور تیسری شہادت حضرت امام حسین کی ہے۔ اس کے بعد عظمت شہادت پر مدمر خطاب ہونا باقی ہے۔ آؤ حضرت نمی علی اصغر کی شہادت کو دیکھتے ہیں، حضرت عباس کی شہادت کو دیکھتے ہیں۔ ایک گھنٹہ پانی نہ ملے تو روح خشک ہو جائے گی، ایک گھنٹہ پانی نہ ملے تو زبان کانٹے ہو جائے گی، ایک گھنٹہ پانی نہ ملے تو زبان سوکھ جائے گی، ایک گھنٹہ پانی نہ ملے تو ہونٹ پھٹنے لگے گا، ایک گھنٹہ پانی نہ ملے تو دل پھٹنے لگے گا، مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ حضرت عباس علمبردار ہے جو مولا حسین کے ایک بھائی بھی ہے، حضرت مولا حسین کے سوتیلے بھائی بھی ہیں۔ حضرت عباس کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ نکل جاتے تھے تلوار لے کر تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی، مگر آج مولا حسین خیمے کے اندر گئے ہیں۔ حضرت سکینہ جو امام حسین کی بیٹی ہے تڑپ جاتی ہے، مچل جاتی ہے، جس کی عمر 7 سال کی ہے۔ حضرت عباس علمبردار کو دیکھ کر کہتی چچا جان ذرا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک چھوٹی سی التجا ہے، اگر آپ قبول کر لیں گے تو آج بہت بڑی مہربانی ہوگی، احسان ہوگا۔ یہ ننھی چھوٹی سی بچی حضرت سکینہ ہے جس کی عمر 7 سال کی ہے، ہاتھ جوڑ کر ننھے ننھے ہاتھوں کو مولا عباس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی چچا جان ان جوڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج مت لینا، ان جوڑے ہوئے ہاتھوں کی التجا کو قبول کرنا۔ مولا عباس کا سینہ دھک دھک ہونے لگتا ہے، آپ کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، سینے سے لگاتے کہتے بیٹی سکینہ بتا آج عباس علمبردار اپنی گردن دے کے تیری التجا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بازوؤں کو قلم کرا کر تیری آج فریاد سننے کے لیے تیار ہے۔ بیٹی سکینہ بتا کیا چاہیے؟ کہا چچا جان مجھے پانی چاہیے، چچا جان مجھے پانی چاہیے، میں 3 دن سے پیاسی ہوں، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مگر میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر ہے جو 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، جو شیر خوار بچہ ہے، بار بار زبان نکال کر پانی طلب کر رہا ہے، ماں کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، ذرا چچا جان ظالموں کو جا کر کہیے کم سے کم ایک چنی پانی دے دے تاکہ رن میں علی اصغر کو پلا دی جائے، ایک چنی پانی دے دے تاکہ سکینہ پیاس بجھا لے۔ حضرت عباس کا سینہ پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، پیچھے مشکزہ کھینچتے ہیں، ہاتھ میں حیدر ذوالفقاری لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں، مولا حسین جا کر رکاب تھام لیتے ہیں اور فرماتا عباس کہاں جا رہے ہیں، عباس کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عباس نے جیسے یہ سنا
सकीना मौला हुसैन से इल्तिजा करते, भाई जान मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, सकीना की प्यास को देख कर जा रहा हूँ, अली असगर की तड़प को देख कर जा रहा हूँ, भाई जान खुदारा मुझे जाने दीजिए। हजरत अब्बास के बरदार ने जैसे ये कहा, मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गया और कहा कि भाई अब्बास आपको मालूम है, आप मेरे बासु हो, आप मेरे कमर हिम्मत हो, आप मेरे पुश्ते पना हो, जालिम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा अगर तुम चले जाओगे तो करबला के काफिला को कौन लेकर जाएगा, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो सालारे काफिला कौन बनेगा, तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो मदीना ये कौन लेकर जाएगा। अब्बास मत जाओ, अब्बास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, अब्बास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इतना कहना था। हजरत अब्बास कहते भाई सकीना की तरफ होठों को देखो, सकीना के लरजती हुए ज़बान को देखो, नन्हे अली असगर की सूखी हुई ज़बान को देखो, भाई मुझे जाने दो, मौला हुसैन है, सीने से लगाते हैं और कहते अब्बास लगता है आखिरी मुलाकात हो रही है, ऐसा लगता आखिरी मुलाकात हो रही है, बस इतना कहना था। हजरत अब्बास कहते हुजूर अंजाम जो हो उससे परवाह नहीं है, अंजाम जो हो उससे फिक्र नहीं है, मैं चाहता हूँ। हजरत मौला अब्बास है, घोड़े के पुष्ट पर सवार होते हैं, नहरे फुरात में पहुंचते हैं, घोड़े के उतारते हैं, मशकज़े में पानी भरते हैं, जैसे पानी भरना शुरू किया पीछे से जालिम पुकार कर कहता लोगों बूंद पानी भी हुसैन के खेमे पे नहीं जाना चाहिए, एक कदम पानी भी हुसैन के खेमे में नहीं जाना चाहिए, अगर हुसैन के खेमे में एक बूंद पानी भी चला जाएगा तो 22 तो क्या 22 लाख यजीदी भी हो तब भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा अब्बास को रोका जाए, अब्बास को रोका जाए। सुनो मुसलमानों, हर जगह जहाँ हुसैन का नाम है वहाँ अब्बास का नाम लिया जाता है, जहाँ हुसैन का तराना पढ़ा जा रहा है वहाँ अब्बास का नाम लिया जा रहा है। हजरत अब्बास ने मशक़ज़ा भरा, उठने की तैयारी कर रहे हैं, दिल में ख्याल आया काश मैं भी पानी पी लो, मुझे भी पानी की हाजत है। हाथ भरते हैं, चन्नी भर रहे हैं, पानी पीने के लिए जैसे ही सामने जाते हैं हजरत सकीना की याद पड़ रही है, अली असगर की ज़बान सामने आ जाती है और हजरत अब्बास के लिए दिल में सोचने लगे अब्बास तुम पानी पियोगे, सकीना नहीं पिएगी, मैदान महशर में मुस्तफा से शिकायत करे तो क्या जवाब दोगे। अली असगर पानी नहीं पिएगा, हशर के मैदान में अगर शिकायत करे नाना मुस्तफा से तो क्या जवाब दोगे। हजरत औले मोहम्मद बिना पानी पिए शहीद हो गए, अली अकबर बिना पानी पीने शहीद हो गए, हजरत कासिम बगैर पानी पीते शहीद हो गए। जब तुम पानी पियोगे कि अगर मुस्तफा की बारगाह में शिकायत करे तो क्या जवाब दे सकते हो। हजरत अब्बास ने पानी छोड़ दिया, उसके बाद घोड़े से कहा है घोड़ा तू तो बेजुबान है, तू तो सवार ही है, लिहाजा तू पानी पी ले। घोड़ा ने अपना सर नीचे किया, उसके बाद सर उठा कर कहता मौला मैं हुसैन का गुलाम हूँ, वफादार हूँ, सरकार आप अगर पानी ना पिए, हुसैनी पानी ना पिए तो हुसैन का जानवर कैसे पानी पी सकता है, हुसैन का जानवर कैसे पानी पी सकता है। कल हश्र के मैदान में अगर मुस्तफा पूछे कि मेरे नवासे ने पानी नहीं पिया कि जानवर होकर पानी पी लिया, सरकार मैं भी रुसवा नहीं होना चाहता हूँ। ये इतनी सी बात नहीं थी बल्कि हजरत अब्बास सरकार के सब्र का इम्तिहान था। एक जालिम आगे बढ़ा, हजरत सैयदना अब्बास के मशक़ज़े पर तीर मारा, पानी निकलना शुरू हुआ, फिर तीर मारा पूरा पानी निकलना शुरू हो गया। हजरत अब्बास आपके आप से बाहर हो जाते हैं, हैदर जुल्फ़िकारी लहराते हैं, तलवार लहराकर जालिमों को ललकार कर कहते जालिमों मत सोचो उस अब्बास ने पानी ना पिया तो मुश्किल है, आओ आज तुम्हें बता सकता है कि जिनकी नगों में अली का खून है वो पूरा भी शेर मालूम होता है, जिनके नगों में फातिमा की दूध है वो बिना पीकर भी हुसैन का शेर लगता है। आओ तुम्हारी माँ ने अगर हलाल दूध पिलाया है, जालिम आगे बढ़ा है, एक को फिन्नार किया, दूसरी आगे बढ़ा है उसको भी फिन्नार किया, इसी तरह कई जालिमों को फिन्नार कर दिया। अब तमाम यजीदी देखने लगा और कहने लगा लोग अब्बास पर काबू लेने करके नहीं पाओगे। एक बार की हजरत अब्बास पर हमला किया जाता है, आपका एक बाजू कटकर जमीन पे गिर गया है, दूसरा बाजू कटकर जमीन पे गिर गया है, एक जालिम ने आप पर नेज़ा मारा, आपका दिल बैठना शुरू हो गया है। हजरत अब्बास अलग प्रकार के जिसमें से खून का फव्वारा गिरता है, एक जालिम पुकार कर कहता हुसैन देख मेरा भाई अब्बास इस वक्त तड़प तड़प कर मर रहा है। हजरत अब्बास इस वक्त हाथ नहीं तक कटा हुआ था, दोनों हाथ कट कर नीचे जमीन पे गिर गया था, मुख्तसर सी जबान और हलक में जान बंद थे। पुकार के कहते मौला हुसैन आज अब्बास आपसे माफी मांग रहा है, बेटी सकीना अब्बास तुमसे माफी मांग रहा
रहा है, बेटा अली असगर अब्बास तुमसे माफी मांग रहा है कि तेरा बेइज्जती की तक पानी नहीं पहुंचा पाया है, तेरा बेइज्जती की तक पानी ले जाकर नहीं पहुंचाया है। खुदा रा मैदान महशर में मुस्तफा से शिकायत मत करना, खुदा रा मुस्तफा जाने रहमत से कोई शिकायत मत करना। अगर नबी नाराज हो गए तो पूरी जिंदगी की इबादत बेकार हो जाएगी, पूरी जिंदगी की गुलामी बेकार हो जाएगी। लिहाजा मुझे माफ कर देना। दौड़ते हुए मौला हुसैन आते हैं, अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाते हैं, मौला अब्बास को सहारा देकर खेमे के करीब ले जाते हैं। थोड़ी सी जान बाकी है, मुस्कुराकर मौला अब्बास हुसैन के चेहरे को देखते हैं और कहते सरकार मुझे माफ कर दीजिएगा, आखिरी वक्त में आपका दीदार चाहता था, लिहाजा मैंने आपका दीदार कर लिया है, हुजूर मुझे माफ कीजिएगा। हजरत अब्बास का आखिरी वक्त आ चुका है, हजरत अब्बास भी जामे शहादत पी चुके हैं। इस तरह से करबला के मुसाफिर एक एक करके खुदा की राह में जाकर शहादत का जाम पी जाते हैं। अब पारी आती है मौला हुसैन की, अब पारी आती है आखिरी शहीद की, अब पारी आती है साजिदों के इमाम की, अब पारी आती है आबिदों की इमाम की। अब मौला हुसैन तने तन्हा है, 56 साल की उम्र है, मैदान में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बेटा बीमार पड़ा हुआ है, बच्चे भूख और भूख से तड़प रहे हैं, आलम हवाएं चल रही है, गर्म रेत चल रही है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, बीमार बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, कदमों को पकड़कर मचल जाते हैं, कहते अब्बा जान मुझे मैदान में जाने दीजिए, अब्बा हुजूर मुझे मैदान में जाने दो, अब्बा जान मुझे मैदान में जाने दो। हजरत इमाम हुसैन है, बीमार बेटे को सीने से लगा प्यार करते बेटा तू तो मदीना की रसूल जाने वाला है, तो इन लुटे हुए काफिले का सालार तुझे बनना है। जिस वक्त नंगे ऊँटों को घोड़े की पीठ पर बिठाया जाएगा उस वक्त तमाम काफिले का सरदार तुझे बनना है। खुदा रा मुस्तफा के दीन को छोड़ने मत देना, कुरान की अजमत को पामाल होने मत देना, मुस्तफा के दीन को मुझाने मत देना। बेटा तू फिक्र मत कर, तेरा बाप मैदान महशर में तेरे एक एक बातों को याद करेगा मुस्तफा के सामने, तेरी एक एक कुर्बानी को मुस्तफा के सामने याद दिलाएगा। वो बीमार बेटा हजरत सैयद सज्जाद आबिदे बीमार है, जाने की तैयारी कर रहे थे, अब इतने में मौला हुसैन है, जानते हैं कि आखिरी शहादत मेरी होगी, मेरे बाद किसी को बुलाया नहीं जाएगा, मेरे बाद किसी की शहादत नहीं होगी, मेरे बाद कोई काटे नहीं जाएंगे, मेरे बाद कोई मारा नहीं जाएगा। हजरत मौला हुसैन है, मुस्तफा के जुब्बे को पहनते हैं, दस्तारे मुस्तफा को सर पे बांधते हैं, हाथ में हैदर सुल्फ़िकारी लेते हैं, घोड़े की पुश्त पर बैठे जा रहे हैं, एड़ लगाते हैं, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है, घोड़ा आगे जा नहीं रहा है। हजरत इमाम हुसैन है, हर मुमकिन कोशिश करे जमा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे जाना क्यों नहीं चाहता है। कहा हुजूर नीचे तो देखिए नीचे कौन है। हजरत मौला हुसैन गर्दन नीचे करके देखते हैं तो देखते हजरत सकीना है, घोड़े के कदमों को लिपट कर कहती है ये घोड़ा तुमको जानता है मेरा बाप दुनिया से चला जाएगा तो बाप कहते किसको पुकारोगे, मेरा बाप दुनिया से चला जाएगा तो मैं आबादी कहकर किसको पुकारोगे, मेरा बाप दुनिया से चला जाएगा अपने बाप बाप कह के किसको आवाज दूंगी। यहाँ से घोड़ा मेरे बाप को जमीन पे उतार दो। मौला हुसैन नीचे उतरते हैं, घोड़े से नीचे उतरते हैं, हजरत सकीना को सीने से लगाते हैं, तसल्ली देते और कहते बेटा फिक्र मत करना, आखिरी शहादत आ चुकी है, आखिरी वक्त आ चुका है, मुझे मैदान में जाना पड़ेगा। अलकिस्सा मुख्तसर मौला हुसैन मैदान करबला के बीचों बीच जाते हैं, जाने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते मौला मेरी जान की मुकम्मल तौर पर पहले ही सौदा हो चुका है, मेरी जान की कीमत अदा हो चुकी है, मेरे नाना ने मुझको शहादत की बशारत दे चुके हैं, मेरे नाना ने निशानदही कर दिए हैं। एक परवरदिगार अब हुसैन तुझसे एक इल्तिजा कर रहा है, हुसैन तुझसे एक दुआ मांग रहा है, अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी हुसैन, ए मौला हुसैन के कदम को साबित रखना, हुसैन के ईमान को सलामत रखना, हुसैन की जिंदगी के जायज जायज मगर हुसैन की अजमत और अज़्म मुसम्मम को सलामत रखना। ये हुसैन की दुआ थी। मौला हुसैन मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं, यजीदी लश्कर को पुकार करके गए यजीदियों तुम्हारे पास वक्त है, मैं हुसैन हूँ करीम इब्ने करीम हूँ, मैं हुसैन सखी इब्ने सखी हूँ, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारी खताओं को माफ कर दूंगा, अब भी वापस चले जाओ। अब दूसरे तरफ 22,000 यजीदी लश्कर है, तमस्खरा उड़ा रहा है, मजाक कर रखा हुसैन डर गए हो क्या, हुसैन तुम डर गए हो कि तुम्हें मौत आएगी। हुसैन कहता हुसैन डरा नहीं है, हुसैन झुका नहीं है, हुसैन तो मुस्तफा के दीन पे कल भी डटा था आज भी डटा हुआ है, हुसैन कल भी मुस्तफा के परचम को लेकर था आज भी हुसैन इस्लाम के परचम को लेकर खड़ा है। हुसैन न कल डरा था न आज डरा है, मुझे मालूम था कि मुझे शहीद होना है मगर तेरा इम्तिहान था
तू नाकाम हो चुका है, तेरा इम्तिहान का तू फेल हो चुका है, अब पता तू क्या करना चाहता है। मौला हुसैन है, अब सामने यजीद आते हैं, कहा हुसैन अब तुझे आखिरी मोहलत दी जाती है, आखिरी वक्त तुझे दिया जाता है। अब भी यजीद के हाथ पे हाथ लेके हुसैन का एक जवाब था, हुसैन का एक ही जवाब था। हुसैन ने कह दिया ये हाथ मुस्तफा के हाथ पे बिक चुका है, ये जान नबी के हाथ पे बिक चुकी है, ये हयात मुस्तफा की जान हाथों पे बिक चुकी है। अब हुसैन किसी किस्म का साजबाज नहीं कर सकता है, हुसैन कदम पीछे नहीं कर सकता है। ऐसा को बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? हुसैन तुझे शहीद करना है। मौला हुसैन कहते मैं अली का बेटा शेर हूँ, बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता हूँ, लाचारी की मौत नहीं मरना चाहता हूँ। आओ अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो आओ अली के शेर से अपने मुकाबला कर लो। हुसैन तलवार लेकर मैदान कारसार में है, लड़ते चले जा रहे हैं। 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र हो चुकी है। हुसैन जमा मर्दी से लड़ रहे हैं। दाएं तरफ जाते हैं तो दाएं तरफ की यजीदियों का सफाया है, बाएं तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ यजीदियों का सफाया है। इस तरह से आपने नमाज़े जुमा तक इतने लोगों को साफ कर दिया है, मगर ऐसे नहीं आपने साफ किया है। 72 जख्म आपके ऊपर लगा है, 32 तीर आपको चुका हुआ है, 36 आपके ऊपर खाने का निशान है, 72 तलवारों के जख्म आ चुके हैं। नाज़रीन पेशानी पर तीर चुकी है, मगर मौला हुसैन के जिस्म से खून निकल चुका है। आखिरी वक्त आ चुका है। अब आज हम और आप है सबसे ज्यादा दूर दीन से होते हैं, सबसे ज्यादा कुरान से दूर है, नमाज से दूर है। मौला हुसैन कहते जालिमों कौन सा दिन है? तो जालिमों ने कहा जुमे का दिन है। कहा इस वक्त क्या होता है? कहा हर खतीब अपने खुतबे में मुस्तफा के दीन का याद करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को याद करते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते। कहा हुसैन की नमाज पढ़ना चाहता है। कहा हुसैन डर से नमाज पढ़ रहे हो? कहा हुसैन डर से नमाज नहीं पढ़ रहा है, अपने बंदगी का हक अदा करना चाहता है, अपने सजदों का हक अदा करना चाहता है। हुसैन आखिरी सजदा करते हैं, उसी सजदे में मौला हुसैन शहीद होते हैं। लेकिन शहीद होने वाला कौन है? इमाम हुसैन है, अली का बेटा है, फातिमा का दान है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है, दीन का सुतून है, शहीदों का इमाम है, बेकसा की मौत नहीं मरे हैं, सजदा करके खुदा की बारगाह में जान दिए हैं, इबादत करके खुदा की बारगाह में जान दिए हैं, जामे शहादत पी कर खुदा की बारगाह में जान दिए हैं। मुझे मालूम है आप थक चुके हैं, आखिरी तकलीफ आपको सुननी है। सजदा हर जगह करना आसान है, मस्जिद में सजदा करते हैं, मदरसों में सजदा किया जाता है, घरों में सजदा किए जाते हैं, स्टेजों में सजदा किए जाते हैं, जलसगाहों में सजदा किए जाते हैं। मगर हुसैन आपने तीरों की बारिशों में सजदा किया, तलवारों की खनकार में सजदा किया, ढालों के साए में आपने सजदा किया, ढालों के बीच में आपने सजदा किया, दुश्मन की जलखार में आपने सजदा किया। आपका सजदा कैसा था तो तारीख बताती है। फरिश्तों ने भी सजदा किया, हूरों की इमाम ने सजदा किया, आलिम फाजिल ने सजदा किया, पीरों ने भी सजदा किया, नबियों ने भी सजदा किया, रसूलों ने भी सजदा किया, सहाबाओं ने सजदा किया, शहीदों ने सजदा किया, मुसलमानों ने सजदा किया, औरतों ने सजदा किया, जवानों ने सजदा किया, बच्चों ने सजदा किया। और दुनिया पुकार कर कहती है सजदा औरों ने किया, उसका नया अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। आज यह है करबला का पैगाम, हर हाल में नमाज पढ़े, हर हाल में दीन पर कायम रहे, हर हाल में कुरान की तिलावत करे, हर हाल में सजदा की कोशिश करे, हर हाल में सब्र करने की कोशिश करे, हर हाल में इबादत करे। इसलिए कि दुनिया हुसैन की है, इकरा हुसैन का, ये जमाना हुसैन का है, जन्नत हुसैन की, मदीना हुसैन का है, करबला हुसैन का, कूफा हुसैन का है, घर घर में चर्चा हुसैन का। सुए हश्र हम चलेंगे शहीद अबरार के साथ, काफिला होगा लगा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत है, वरना कौन होता है निपट कर करो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, होगी मुलाकात शायरे दरबार के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।